السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم کی صدارت میں آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال، آئندہ چند روز میں اس سے متاثرہ افراد کے تخمینے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 97 اموات ہوئی ہیں اور 5000 سے زائد افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ کئی یورپی ملکوں نے کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد آج سے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ سینٹ میں قائد اعوان نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کا بجٹ وزیر اعظم کے ہم آہنگی، کفایت شعاری اور اصلاحات کے ویژن کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے وضاحت کی ہے کہ اس سال فروری تک کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے سے قبل ٹیکس وصولی میں تقریباً 17% اضافہ ہو چکا تھا۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جس کے تحت سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 337 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ اب تک ملک بھر میں 6,23,000 ہیکٹر رقبے پر انسداد ٹڈی دل ادویات کا اسپرے کیا جا چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے ہندوتوا نظریے سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن دیرینہ تنازع کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنا کر ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تازہ ترین تخمینوں کی بنیاد پر لوگوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں حفاظتی لباس اور کٹس کی ضروریات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان نے مقامی قیادت کو ہدایت کی کہ وہ انتظامیہ کے تعاون سے اپنے متعلقہ علاقوں کے اسپتالوں میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی سہولیات کا جائزہ لے۔ انہوں نے قیادت کو ہدایت کی کہ وہ ضابطۂ کار پر عمل درآمد میں لوگوں کا تعاون یقینی بنانے میں بھی فعال کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کو متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں تاکہ آنے والے مشکل ہفتوں میں احتیاطی تدابیر اور معاشی سرگرمیوں میں توازن پیدا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے مریضوں کو دی گئی بعض ادویات اور انہیں لگائے جانے والے انجیکشنز کی دستیابی میں مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین کو ان ادویات اور انجیکشنوں کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور آئندہ چند روز کے اندازوں اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف صوبوں کے ہسپتالوں میں بستروں، آکسیجن، وینٹیلیٹرز اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے 107 لیبارٹریاں قائم کر رہی ہیں اور روزانہ 25,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 4,800 ہے، جبکہ 1,600 مزید وینٹیلیٹرز جلد شامل کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ مہینے تک صوبے کے مختلف اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مزید 2,000 بستر دستیاب ہوں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 20 بڑے شہروں میں ان مقامات کی نشاندہی کر لی گئی ہے جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جہاں صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ملک کے مجموعی طور پر 20 شہروں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں ممکنہ طور پر کورونا پھیلنے کی رفتار یا اس کا تناسب بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کورونا کے مریضوں کی نشاندہی، ان میں وائرس کی تشخیص اور انہیں قرنطینہ میں رکھنے کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لینا اور ان مقامات پر خصوصی توجہ دینا ہے جہاں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تاکہ مخصوص لاک ڈاؤن کیا جا سکے اور ہر سطح پر ضرورت کی بنیاد پر وسائل بروئے کار لائے جا سکیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5,248 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے۔
पंजाब में 54,138, सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, इस्लामाबाद में 8,569, गिलगित बल्तिस्तान में 1,129 और आज़ाद कश्मीर में 647 मरीज हैं। गुज़श्ता एक रोज़ में मज़ीद 97 अमवात के बाद इस वबा से जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 2,729 हो गई है। अब तक इस वबा से मुतासरा 53,721 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 80,19,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस वबा से अब तक 4,36,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमरीका इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ 21,62,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर और 1,17,000 से ज़्यादा हलाक हुए। ब्राज़ील में 8,67,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए, जबकि 43,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। कई यूरोपीय मुल्कों ने अपनी सियाहत की सनत की बहाली के लिए लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों में नरमी की है। 27 रुकनी इत्तेहाद ने आज से अपनी सरहदें दोबारा खोल दी हैं। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड भी आज से यूरोपीय मुल्कों के साथ अपनी सरहदें मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट में कायदे-ए-अवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि नया बजट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हम आहंगी, किफ़ायतशारी और इस्लाहात के विजन के तहत पेश किया गया है। उन्होंने आज नए माली साल के बजट पर ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस के तनाजुर में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में 1200 अरब के बड़े मालियाती पैकेज का ऐलान किया था और इस पैकेज में से 875 अरब रुपए नए बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए 200 अरब रुपए और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आम आदमी के यूटिलिटी बिल्स 3 माह के लिए मौखर कर दिए गए हैं। किफ़ायतशारी के हवाले से डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाल कायम करके इस हकीकत को साबित किया है और पीएम ऑफिस के लिए मुख्तस रकम में से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत की। कायदे-ए-अवान ने इस्लाहाती प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क अपने इदारों में इस्लाहात के बगैर दूर रस नताइज हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने रियासती इदारों में इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ किया। उन्होंने कहा कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट का मंजर आम पर आना और शुगर स्कैंडल की जिम्मेदारी का तयन शफाफियत और एहतसाब पर मबनी हुकूमती पॉलिसी की रोशन मिसाल है। कायदे-ए-अवान ने कहा कि टैक्स महसूलात में 17%, गैर टैक्स आमदन में 134% और पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की हुकूमती कोशिशों के नतीजे में फाइलर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मूडीज़, आलमी बैंक और ब्लूमबर्ग जैसे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम को तस्लीम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को गुज़श्ता हुकूमतों की तरफ से बदउनवानी और बहुत से कर्जे लेने की वजह से कर्जों में डूबी मईशत विरसे में मिली। कायदे-ए-अवान ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो अपनी तजावीज़ पेश करें और हुकूमत बजट के बारे में उनकी मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेगी। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मुल्क और अवाम के बेहतरीन मफाद में अवाम दोस्त फैसलों पर यकीन रखती है। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि हुकूमत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी। रज़ा रब्बानी ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड की हिदायत पर तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा नहीं किया गया। इंसदाद मनशियात के वज़ीर आज़म खान स्वाति ने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जबकि ड्यूटीज़ में कमी की गई है। उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और बदउनवानी की रोकथाम के लिए टैक्सों की वसूली का खुदकार तरीक़ाकार मुतारिफ कराने पर भी जोर दिया। इससे पहले सेनेटर शेरी रहमान ने बजट पर बहस का आगाज़ करते हुए कहा कि एक हंगामी बजट भी होना चाहिए था, जिसमें सेहत के शोबे के लिए बड़े पैमाने पर ढांचा जाती तब्दीलियां की जानी चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए कोई रोड मैप या लाएअमल पेश करने में नाकाम रही है। ऐवान का इजलास अब बुध को दोपहर 4 बजे फिर होगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने वाजे किया है कि रवां बरस फरवरी में कोरोना वायरस से कबल टैक्स वसूली में तकरीबन 17% इजाफा हुआ। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के पेश किए गए आदाद व शुमार को मुस्तरद करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बराह रास्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में दुगना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी 50% इजाफा हुआ, जिससे हमारे रुपए की कीमत बढ़ी है।
बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं, वो रिजर्व में 50% का इजाफा था। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट में 73% बेहतरी नजर आ रही थी। असद उमर ने कहा कि इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद अवामी हिमायत से इक़्तिदार में आए हैं और अब वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कराची में जारी मंसूबों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा रवां साल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे का पहला मरहला इस साल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 206 अरब रुपए लागत के सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर भी काम शुरू हो जाएगा और इस साल मंसूबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि K4 आबी मंसूबा सिंध हुकूमत के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि दयामिर, भाषा, दासू और मोहम्मद डैमो समेत पनबिजली के 3 बड़े मंसूबों पर एक ही वक्त में काम के आगाज का सेहरा भी मौजूदा हुकूमत के सर है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने आइंदा माली साल के बजट पर बहस शुरू करते हुए तरक्याती बजट में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ और लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को महंगाई के पेश नज़र मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मुलाजमीन पूरी मेहनत से दिन रात काम करते हैं और उन्हें उनका हक़ मिलना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुलाजमीन की मदद के लिए माली गुंजाइश पैदा की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को तिब्बी अमले का खुसूसी ख्याल करना चाहिए, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। ऐवान का इजलास अब कल शाम 4 बजे होगा। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया गया। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जमा बख्त ने ऐवान में बजट पेश किया, जिसका इजलास कोरोना की सूरत हाल की वजह से लाहौर के एक मकामी होटल में हुआ। सूबाई वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मजीद तफसील लाहौर से यासिर असलम की इस रिपोर्ट में। बजट इजलास से खिताब करते हुए हाशिम जमा बख्त ने कहा कि सेहत के शोबे के लिए बजट में 224 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत इंसाफ कार्ड 36 अजला में 50 लाख अफराद में तकसीम किया गया है। इस पैकेज में कारोबार और आवाम की सहूलत के लिए 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ, जबकि 25 अरब रुपए से जायद की रकूम सेहत के दोनों महकमों महकमा ज़कात और PDMA को दी गई, ताकि वो हुकूमत को सेहत की बेहतरी सहूलियात और फौरी रिलीफ मुहैया कर सकें। उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब रुपए, जबकि तालीम के लिए 391 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह स्कूल एजुकेशन के लिए 350 अरब रुपए, जबकि दाने स्कूल के खर्चात के लिए 3 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए बजट में 13 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है, जबकि लाइफ स्टॉक के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह महकमा जंगलात के लिए 8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जबकि आबे पाक अथॉरिटी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। हाशिम जमा बख्त ने बताया कि सड़कों की तामीर के लिए 15 अरब रुपए की लागत से दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब रुपए, जबकि मजहबी सियाहत के लिए 2 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। इससे पहले वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई काबीना के इजलास की सदारत की, जिसमें फाइनेंस बिल 2020 के अलावा अगले माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मुतफ़िक़ा मंजूरी दी गई। इजलास में रवां माली साल के ज़िमनी बजट और इसके नज़रसानी शुदा तखमीनों की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक बजट में लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। अगले माली साल के लिए सिंध का बजट बुध को कराची में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। माली साल 2020-21 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट जुमे को पेशावर में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे जारी है। हंगामी इमदादी इदारे के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 6,800 हेक्टेयर रकबे पर छिड़काव किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अब तक 6,23,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके पर छिड़काव किया जा चुका है। मुल्क भर के 40 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। इनमें बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला शामिल हैं। कोरोना के लिए खैबर पख्तूनख्वा टास्क फोर्स का इजलास वजीर आला महमूद खान की सदारत में आज पेशावर में हुआ। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से।
मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि हुकूमत ने इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है जहां कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने इसके लिए पूरे सूबे में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमेटियां मुरतब कर दी है। जो खैबर पख्तूनख्वा में केसेस के रेशो है उस हवाले से हम अब डील करने जा रहे हैं। इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक हम अब जा रहे हैं। जहां जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर 3500 कोरोना टेस्ट करवा रही है जिसको मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर कोशिशें कर रही है। अजमल वजीर ने कहा कि SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल बहरान का जिक्र करते हुए मुशीर इत्तलात ने कहा कि 437 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला जाम कमाल खान ने कहा है कि ज़िला खुजदार में कोरोना वायरस टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस इक़दाम से सूबे में कोरोना वायरस टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि खुजदार और करीबी अज़ला के लोगों को इस लेबॉर्ट्री से कोरोना वायरस के टेस्ट कराने की सहूलत हासिल होगी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे में घरों में अलग होने वाले कोरोना के 5000 मरीजों को तिब्बी सहूलतें फराहम करेगी। कोयटा में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की सहूलतों की फराहमी में इजाफा किया है। लियाकत शाहवानी ने टिड्डी दल के हवाले से कहा कि सूबाई हुकूमत पाक फौज के ताउन से तमाम मुतासरा ज़िलों से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने तमाम तरक्याती फ़ंड्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रवां साल वफाकी हुकूमत ने भी गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के हिंदुत्व नज़रिए से इलाक़ाई अमन और सलामती को शदीद ख़तरा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम इलाक़ाई ममालिक को BJP की पॉलिसियों पर तशवीश है। उन्होंने इस अमर पर अफसोस ज़ाहिर किया कि भारतीय हुकूमत ने सार्क फोरम को गैर फ़ाल बना दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि कोरोना वायरस की वबा फूटने के बावजूद भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने मज़ालिम में कमी नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से मुआसरे और तलाशी की कार्रवाइयों में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के दरीना तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कमिश्नर की रिपोर्ट्स मकबूज़ाबादी में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मुँह बोलता सबूत हैं और दुनिया को वहाँ की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में मुसलमानों के कत्ल आम की रिपोर्ट्स दुनिया भर के ज़राए इबलाग ने दी हैं। उधर वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि भारत को कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई तरीक़ों और फोरम्स पर भारत के मज़मूम अज़ाइम बेनकाब कर चुका है और कश्मीर हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए मखसूस तरीक़ाकार पर अमल करना होता है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के एक बयान के जवाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारत से तारीख़ में पहली मरतबा इस कदर नाला हैं कि इससे कबल कभी न थे। उन्होंने भारतीय वज़ीर दिफ़ा को चैलेंज किया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करें और देखें कि वहाँ के अवाम इनकी हिमायत करते हैं या नहीं। आइए, हम आपको दावत देते हैं, आजाद कश्मीर में आइए और कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि 5 अगस्त के इक़दामात को कोई कश्मीरी, किसी मकतब फिक्र का कश्मीरी, चाहे किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या नहीं। और अगर आप में हौसला है तो फिर इमरान खान साहब को या मुझे आप इजाजत दें कि हम आए और हमें फिर श्रीनगर में एक खुली कचहरी का मौका इनायत करें, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सही मौसम का हाल आपको दिल्ली तक उसकी खबर हो जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने समाजी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वबा के बायस माली मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज मुजफ्फराबाद में एक समाजी तंजीम के 5 रुकनी वफ़द से मुलाकात के दौरान किया।
मकबूजा कश्मीर में सैयद अली गिलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई और गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा मसरत आलम भट्ट समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत जम्मू कश्मीर पर भारत के जाबिराना कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत और रोशनी के मीनार की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के ताउन से श्रीनगर में सहाफ़ियों के एक ग्रुप की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक तीनों रहनुमा अपनी बहादुरी और बेबाकी की वजह से कश्मीरी अवाम के दिलों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हर किस्म की आजमाइश और मुश्किल हालात में आज़ादी का परचम सरबुलंद रखा है। मकबूजा कश्मीर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने मीर वाइज उमर फारूक की नज़रबंदी की मजम्मत करते हुए मीर वाइज उमर फारूक और भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद तमाम कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसे कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन देरीना हल तलब तनाज़े कश्मीर के हल से मशरूत है। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें आपने सुनी और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान जारी कर दिया है, जिसकी मंजूरी आज लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में दी गई। इस हिकमत अमली के हमनिकात में पायदार कॉरपोरेट नज़्म-ओ-नसक़, आलमी दर्जे की बैनुल-अक़वामी टीमों की तैयारी, ग्रास रूट फ्रेमवर्क, ख़वातीन के खेल का फ़रोग़ और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस का फ़रोग़ शामिल है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने राह अमल पेश करते हुए कहा कि हमने 2019 में 5 साला प्लान तैयार किया था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से मंजूरी दरकार थी। उन्होंने कहा कि अब हम इस राह अमल का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि यासिर शाह और शादाब खान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बहुत खास होगी। साउथहैम्पटन की पिच से स्लो बॉलर्स को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिलाल आसिफ बासलाहियत स्पिनर हैं, उनके साथ दूसरे नौजवान स्पिनर्स की सलाहियतों को भी निखारेंगे ताकि इस शोबे में बेहतरीन बॉलर्स पाकिस्तान के पास हों जो हर किस्म की पिचेस पर शानदार खेल पेश कर सकें। इसके लिए बेहतरीन अंदाज में प्लानिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो कोरोना की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे अमली तौर पर काम होता नजर आने लगेगा। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन लोगों को बेहतरी ज़रूर दिखाई देगी। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि वो उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। उन्होंने इस मौके पर मद्दाहों से घर में रहते हुए इस मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने के लिए भी कहा। याद रहे कि क्रिकेट शाहिद आफरीदी ने कुछ दिन पहले अपने कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बत आने के बारे में बताया था, जिसके बाद वो खुद को घर में अलग थलग किए हुए हैं। पाकिस्तान के बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा है कि शानदार बैट्समैन और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का मवाजना भारतीय कप्तान विराट कोहली से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की अपनी क्लास है। बाबर का मवाजना कोहली से करना सही नहीं, क्योंकि वो 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि बाबर आजम सिर्फ 4-5 साल से खेल रहे हैं। यूनुस खान ने, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स और सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड है, कहा कि जब वो टेस्ट और एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेलते थे तो उनका मवाजना इंज़िमामुल हक से किया जाता था। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन पाकिस्तान ओपन शैडो बॉक्सिंग फिटनेस चैलेंज 2020 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कर्नल मोहम्मद नासिर एजाज के मुताबिक इवेंट में मुल्क भर से क्लब सतह के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टेनिस के मारूफ खिलाड़ी हुज़ैफा अब्दुर्रहमान ने आइंदा 10 बरस में खेल के मैदान में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से मुल्क का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया है। और अब सुनते हैं तिजारती खबरें। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अपने कर्ज पोर्टफोलियो को रीशेड्यूल करने की इजाज़त देने से न सिर्फ इन कंपनियों को अपने कर्जे एडजस्ट करने में मदद मिली है, बल्कि 9,32,862 अफराद और कंपनियों को भी कर्ज की अदायगी में सहूलत मिली है, जिन्होंने 17 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज लिया है। SECP के मुताबिक इनमें से 7,96,893 कर्ज दहिंदगान को 6 कंपनियों की जानिब से 13 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियों को मौखर करने की सहूलत हासिल हुई, जबकि 1,35,969 कर्ज दहिंदगान को 4 कंपनियों की जानिब से 3 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज की अदायगी की तारीखों में तौसी के जरिए सहूलत हासिल हुई। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मियां काशिफ अशफाक ने आज कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस के आलमी वबा के माशी असरात से निमट रही है, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रहनुमाई में इलाकाई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के ज़रिए इस चैलेंज को अजीम माशी फ़ायदे में तब्दील कर रहा है। कैंप ऑफिस से वीडियो लिंक के जरिए फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा के बाइस मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात से निमटने की कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एससी 100 इंडेक्स 786 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 33,824 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 262 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 355 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। रफान मेस कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 115 रुपये का इजाफा, जबकि पाक टोबैको के हिस्से की कीमतों में 67 रुपये 25 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 162 रुपये 61 पैसे और कीमत फ़रोख्त 166 रुपये 40 पैसे, यूरो 183 रुपये 12 पैसे और 187 रुपये 39 पैसे, सऊदी रियाल 43 रुपये 31 पैसे और 44 रुपये 35 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 84,019 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 78,864 मीट्रिक टन सामान की नकलो अमल हुई, जिसमें से 37,648 मीट्रिक टन बरामदी और 41,216 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मारूफ उर्दू शायर और सफ़रनामा निगार इब्न इंशा का आज 90वां यौम पैदाइश मनाया गया। उनका हकीकी नाम शेर मोहम्मद खान था। 1927 में भारतीय पंजाब के ज़िला जालंधर में पैदा हुए। उनकी शायरी सादा मगर गहराई रखती थी, मगर वो अपने तंज़ो मिज़ाह के बाइस ज़्यादा मशहूर थे। इब्न इंशा के शायरी के फनपारों में चांद नगर और दिल वहशी शामिल हैं। सफ़रनामों में दुनिया गोल है, आवारागर्द की डायरी, इब्न बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर शामिल हैं। तंज़ो मिज़ाह पर मबनी उनकी किताबों में खुमार गंदुम और उर्दू की आखिरी किताब शामिल हैं। ख़त इंशा जी के नाम से उनके लिखे गए खतूत भी बेहद मारूफ हैं। इब्न इंशा 1978 में वफ़ात पा गए थे और उन्हें कराची में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात ने अदाकारा सबिया खानम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अदाकार यासिर हुसैन ने उनकी मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके अगले सफ़र के लिए दुआ गो हैं। फरिया अल्ताफ़ ने कहा कि सबिया खानम का दुनिया छोड़कर चले जाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि मरहूम अदाकारा ने अपनी अदाकारी के ज़रिए हम जैसे अदाकारों के लिए फिल्म इंडस्ट्री का नाम जिंदा रखा। हुमायूं सईद और इमरान अब्बास ने कहा कि सबिया खानम हमारे मुल्क का कीमती असासा थीं। अदाकार शान शाहिद भी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्थुल गाजी के मुतरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो नेटफ्लिक्स पर ड्रामा सीरियल का पूरा सीज़न देख चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रामा ऐसा मास्टरपीस है जिसमें वो तमाम अदाकारों की मेहनत देख सकते हैं। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। साइंसदान एक तजुर्बाती दवा का ये जांचने के लिए टेस्ट करेंगे कि आया इसकी मदद से कोविड-19 से मुंसलिक मौलिक शरियानों और रगों में खून जमने की बीमारी यानी ब्लड क्लॉटिंग से बचा जा सकता है या नहीं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की माली एहानत से किए जाने वाले इस ट्रायल के जरिए ये पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि आया कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बायस पैदा होने वाले हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन ब्लड क्लॉटिंग का बायस बनता है। ये कोरोना वायरस से लायक होने वाली बीमारी के बदतरीन असरात को रोकने के लिए आजमाइशी दवाओं में से एक बन जाएगी। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि कॉफ़ी पीना हमारी शरियानों के लिए इस हद तक ख़तरनाक नहीं जितना कि पहले की तहकीक में बयान किया गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी की तहकीक में बताया गया है कि दिन में 25 कप कॉफ़ी पीने का शरियानों के तंग होने या सिकुड़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं। साइंसदानों ने कॉफ़ी पीने वालों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। ऐसे लोग जो दिन में 1 कप या इससे कम कॉफ़ी पीते हैं, दूसरे वो जो 1 से 3 कप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और तीसरे वो जो दिन में 3 से ज़्यादा कप कॉफ़ी पीते हैं। महक़क़ीन ने दरियाफ़्त किया है कि 3 कप कॉफ़ी पीने के बाद इससे ज़्यादा कॉफ़ी पीने से इंसानी शरियानों में किसी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं होती। और अब आज के मौसम की रिपोर्ट। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 39, पेशावर 41, कोयटा 38, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 40 और मरीज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत: श्रीनगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 40, लेह 25, पुलवामा 30, अनंतनाग 30, चुपैयां 26 और बारामूला 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आज इस्लामाबाद में आला सतह के इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, आइंदा चंद रोज़ में इससे मुतासरा अफराद के तखमीने और इस सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 97 अमवात हुई हैं और 5000 से ज़्यादा अफराद में इस मरज़ की तशख़ीस हुई है। कई यूरोपीय मुल्कों ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बाद आज से लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी है। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया गया। खबरनामा आपने सुना।
پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر اور مدیر فورن ڈیسک محمد جواد، مدیر کھیل تجارتی خبریں سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال اور مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اب اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری اور عشرت فاطمہ کو تمام نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔